Very good morning, students. I hope you all are great and also revised your previous chapter. Today we are going to do our chapter 6, which is more on Excel 2016. इस chapter के अंदर हम additional features के बारे में पढ़ेंगे of Microsoft Excel. So, without wasting any further time, let's dive into the chapter. The name of our chapter is More on Excel 2016, and topics which we will discuss in this chapter are formulas, simple formula in Excel, compound formula in Excel, operators in MS Excel, operators precedence, error results, copying formulas, cell referencing, and printing a worksheet. Now we have an amazing thought, which is education is not the learning of facts but the training of the mind to think. Now we have an activity which says rearrange the following steps to open Microsoft Excel. So our very first step will be click on start button. The next step will be click on Excel, and the third step will be click on blank worksheet. Now moving forward, Kavya says, hello Mayank, I want to calculate the total marks obtained in all class subjects of my friends in the half yearly examination, but I don't know how to do it. Then Mayank says, hi Kavya, don't worry, it is very easy to do that. Then she says, really, that's possible? Then he replies that yes, with the help of Microsoft Excel, it is great for doing calculations. In this chapter, we are going to learn the features of Excel. नाउ फॉर्मूला को हम डिफाइन करते हैं एज ए मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन या फिर कोई फिजिकल लॉ जो रिप्रेजेंट करता है एक रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज. सिमिलरली डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जो प्ले करते हैं एक वाइटल रोल इन वेरियस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. तो इन एमएस एक्सेल फॉर्मूलाज जो हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं लिखे जाते. Formulas are used in MS Excel for calculations and formation of various programs. तो formulas क्या होते हैं? Formulas in Excel हम उनको use करते हैं to do mathematical calculations, and ये important है to know that formula in MS Excel start with an equal to sign. यानी कि MS Excel के अंदर जो भी formulas हैं वो begin होते हैं with equals to sign. So it is also notable that there is a particular formula with maximum character in length. Now जैसे कि हमारा formula है B2 plus C1 मल्टीप्लाइड बाय A1 माइनस A2 मैक्स 9. तो यहाँ पे हमारा ये क्या है? B2, C1, A1, A2 ये सब हमारे सेल एड्रेस होते हैं. देन ये जो हमने बीच में दोनों के ऑपरेटर लगाया है ये हमारा ऑपरेटर है. दिस इज आवर फंक्शन दैट हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं एंड कांस्टेंट यहाँ पे है 9. तो फॉर्मूला कंटेन करते हैं कुछ एलिमेंट्स जैसे सेल एड्रेस, ऑपरेटर, कांस्टेंट एंड फंक्शंस. तो सेल एड्रेस क्या होता है? कोई भी सेल या फिर रेंज ऑफ सेल्स इंक्लूडेड होते हैं हमारे कैलकुलेशंस में. फॉर एग्जांपल A1, B2, B5 एटसेट्रा. ऑपरेटर्स वो सिंबल होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेशन या फिर कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रेटर देन, लेस देन. कांस्टेंट वो वैल्यूज होती है जो चेंज नहीं होती. और फंक्शंस क्या होते हैं? प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज एटसेट्रा. फॉर्मूला जो है वो मैक्सिमम 8192 कैरेक्टर की लेंथ को कंटेन कर सकता है. टेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? जैसे एम्परसेंड, ये कैरेक्टर है जिसको हम यूज करते हैं जब भी हमें क्या करना है? कंबाइन करनी है टू टेक्स्ट वैल्यूज टू अनदर. दैट मीन्स एक टेक्स्ट वैल्यू को जब हमें दूसरी टेक्स्ट वैल्यू के साथ कंबाइन करना है तो अब हम एम्परसेंड का यूज करते हैं टू मेक अ सिंपल टेक्स्ट एनक्लोज इट इन डबल कोट्स. फॉर एग्जाम्पल सेल B2 कंटेन करता है फादर्स वैल्यू एंड नेम, एंड एक्सेल name contains Excel value. So equals to B2 and C2. Result जो होगा of this formula in MS Excel will be this. Now simple formula in Excel, हम यहाँ पे simple formula लिख सकते हैं MS Excel के अंदर to solve calculation, and let us practice to write simple formula that we just learned. तो हमने यहाँ क्या किया? every formula जो Excel के अंदर वो equals to sign से शुरू होगा. कुछ arithmetic operators must be there to operate numerical data. Then the data can be a cell address also. Data जो है वो cell address भी हो सकता है. Some other valid formulas in Excel are 60 minus 20 upon 2 is equals to A plus B. A1 plus B2 equals to C5 into 15. कंपाउंड फॉर्मूला क्या होता है एक्सेल के अंदर? कंपाउंड फॉर्मूला का हम यूज करते हैं जब भी हमें क्या करना है? मोर देन वन ऑपरेटर को रिक्वायर्ड है जब टू परफॉर्म कैलकुलेशन. लेट अस प्रैक्टिस टू राइट कंपाउंड फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पे मोर देन वन ऑपरेटर का यूज किया जाता है. तो हमें क्लिक करना है इन सेल B1 एंड टाइप करना है पाई
and then type the value 3.14 in cell 1. Now again आपको click करना है cell B2 पे and type करना है R and value 10 in cell C2. Then click the cell A3 and type the area of a circle like this. Again click the cell B3 and type the formula C1 into C2 into C2. Now the result appears in the cell and the formula is visible in the formula bar. तो फॉर्मूला है वो कहाँ पे विजिबल है, फॉर्मूला बार में, और रिजल्ट आ जाएगा इन द। ऑपरेटर्स क्या होते हैं एमएस एक्सेल के अंदर? ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्मूला। So there are three different types of operators: arithmetic, logical and reference. Arithmetic operators कौन से होते हैं? इनका हम यूज करते हैं फॉर arithmetic operations जैसे addition, subtraction, multiplication and division. They are used for numeric calculations and some arithmetic operators are given below. But before that, BADMAS एक रूल होता है जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पे यूज किया जाता है इन एक्सेल। एंड एक्रोनिमी फॉर BADMAS इज ब्रैकेट्स, एक्सपोनेंट्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये एक रूल है जिसको फॉलो करके एक्सेल अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। और ये कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है हमारे, जैसे प्लस, ये एडिशन के लिए होता है, इसका फॉर्मूला होता है जैसे A1 प्लस B1। तो इसकी यूसेज कैसे होगी, ये दोनों सेल एड्रेसेस की वैल्यूज को ऐड करके रिजल्ट दे देगा। ऐसे सब्ट्रैक्शन फॉर माइनस, मल्टीप्लिकेशन फॉर मल्टीप्लाइंग, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर निकालने के लिए, और परसेंटेज निकालने के लिए। फिर आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जब भी हमें दो वैल्यूज के बीच में कुछ कंपेयर करना होता है, तब हम इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। नाउ द ऑपरेटर्स आल्सो गिव सिंगल वैल्यू एज रिजल्ट, यानी कि यहाँ पे हमें या तो आंसर ट्रू में मिलेगा या फिर आंसर फॉल्स में मिलेगा। ये ऑपरेटर्स होते हैं जैसे इक्वल्स टू, जो ये बताते हैं कि क्या दोनों वैल्यूज इक्वल है, तो अगर इक्वल है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। देन वी हैव नॉट इक्वल्स टू, यानी कि A1 B2 के इक्वल नहीं है, और अगर नहीं है तो ट्रू, और अगर है तो फॉल्स। फिर आता है ग्रेटर देन, की दोनों में से ग्रेटर है, जैसे यहाँ पे A1 इज ग्रेटर देन B1, तो अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू आंसर आएगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा। ऐसे ही लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, दैट मीन्स यहाँ पे या तो ग्रेटर है या फिर इक्वल है, दोनों ही कंडीशन पे हमें ट्रू मिल जाएगा वरना फॉल्स मिलेगा। एंड सिमिलरली लेस देन इक्वल टू भी यहाँ पे हमें मिल जाता है। नाउ व्हाट इज रेफरेंस? ये जो ऑपरेटर्स है ये यूज किए जाते हैं टू कंबाइन रेंज ऑफ सेल्स। Some reference operators are colon operator, comma operator, union operator, space operator and intersection operator. Now next is operators precedence. So when we use numeric formulas, जब भी हम numeric formulas का use करते हैं, result जो होता है formula का वो calculated होता है based on the order of precedence of the mathematical operators. तो यहाँ पे जैसे ये होते हैं brackets को हम बोलते हैं parenthesis, then we have exponent, then we have multiplication, division and then we have addition, subtraction. So for example, जैसे यहाँ पे क्या है 5 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 40। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे पहले आता है पैरेंथेसिस, तो हम पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे विच इज 5 प्लस 3 इज 8। देन मल्टीप्लाई का साइड आ जाएगा, अगेन पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 3 प्लस 2 इज 5। नाउ उसके बाद में यहाँ पे एक्सपोनेंट पावर हमारे पास नहीं है, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे पहले, सो इट इज 8 5 40। तो हमने क्या किया, प्रेसिडेंस को फॉलो किया, जहां पे हमने पहले पैरेंथेसिस सॉल्व किया, फिर एक्सपोनेंट यहाँ पे गिवन नहीं था तो हमने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया एंड देन हमने आंसर निकाला। नाउ एरर रिजल्ट्स क्या होते हैं, जब भी हम कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि वहां पे कुछ एरर्स अकर हो जाए, दैट मीन्स हमसे कुछ गलती हो जाए। तो सम कॉमन एरर रिजल्ट्स आर एंड देयर रीजंस आर एज फॉलोज। जैसे ये होता है हैश 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 हैश, तो 4 बार हमारे पास हैश का सिंबल आता है तो इसका मतलब है द कॉलम इज नॉट वाइड इनफ टू डिस्प्ले द नंबर। तो इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है। नाउ हैश वैल्यू, इसका मतलब है जो फॉर्मूला है वो कोई इनवैलिड ऑपरेशन को कंटेन करता है, एंड दिस कैन बी इट्स एग्जांपल। डिव अपॉन 0, इसका मतलब है कि कोई हम यहाँ पे वैल्यू को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, इज एन इनवैलिड ऑपरेशन। तो जैसे हाँ, दिस इज योर एग्जांपल। हैश एन अपॉन ए, इसका मतलब है जो डेटा है वो अवेलेबल ही नहीं है, तो इसका एग्जांपल है ये। नाउ व्हाट इज कॉपिंग फॉर्मूलाज? तो जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको लिखते हैं इन ईच रो, बट इफ देयर विल बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ 75 आइटम्स सपोज, तो इट विल टेक मोर टाइम टू डू द टास्क। तो यहाँ पे एक्सेल क्या करता है, राइट करता है फॉर्मूला सिर्फ एक बार एंड देन हम उसको ड्रैग कर सकते हैं
to the other cells you did using autofill. तो इसको बोला जाता है copying formulas. If you want to copy a formula, follow the given steps. तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने सेल को सेलेक्ट करोगे, फॉर्मूला लिखोगे इन द फर्स्ट सेल और एंटर की को प्रेस कर दोगे. तो आपको अपने माउस पॉइंटर को लेके जाना है टू द कॉर्नर ऑफ द फॉर्मूला सेल टू द सेल पॉइंटर हैंडल, एंड अब आप अपने माउस पॉइंटर को जो पॉइंटर था वो चेंज हो जाएगा इन द प्लस साइन शेप, जिसे हम बोलते हैं फिल हैंडल. अब आपको उस फिल हैंडल को क्लिक करना है और ड्रैग करना है फिल हैंडल को विद द लेफ्ट बटन टिल द एंड ऑफ द लिस्ट. तो वो फॉर्मूला आपके सारे सेल्स पे अप्लाई हो जाएगा. नाउ व्हाट इज सेल रेफरेंसिंग? सेल रेफरेंस को हम सेल एड्रेस बोलते हैं, जिसको हम यूज करते हैं इन फॉर्मूला टू डिनोट अ स्पेसिफिक सेल. तो फॉर्मूला कंटेन करता है रेफरेंस ऑफ अदर सेल्स. इन सच केस जो रिजल्ट है ऑफ फॉर्मूला वो डिपेंड करता है ऑन द वैल्यूज इन द रेफर्ड सेल. तो सेल रेफरेंसेस जो है वो स्पेशली हेल्पफुल होते हैं जब भी हमें कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज क्रिएट करने होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस जो एक्सेल के अंदर यूज होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड. तो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग क्या कहता है? रिलेटिव सेल होता है इज अ नॉर्मल सेल एड्रेस, जैसे A1, B5, C7, ये सब जो नॉर्मल एड्रेस होते हैं उन्हीं को हम रिलेटिव सेल रेफरेंस बोलते हैं. रिलेटिव सेल रेफरेंस अकर होता है जब भी सेल इज एंटर्ड इन अ फॉर्मूला विदाउट यूजिंग द सिंबल. For example, when a formula is copied to a new cell, तो reference move करता है same distance as the copied formula moves. If the formula in C1 as, अगर C1 के अंदर formula ऐसे लिखा हुआ है, after copying the formula using the fill handle, तो value of the formula automatically change हो जाती है to cell 2 equals to A2 into B2. Absolute cell referencing में क्या होता है? जो cell references in a formula remains the same. अगर हम उन्हें कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं तब भी यहाँ पे जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं होती टू द न्यू लोकेशन. एंड इफ इट इज यूज्ड व्हेन यू मेंटेन द ओरिजिनल रेफरेंस एज दे वर. यानी कि जब आप कोई ओरिजिनल रेफरेंस मेंटेन कर रहे होते हो तब इनका यूज किया जाता है. फॉर दिस हमें क्या चाहिए? डॉलर साइन का यूज करते हैं हम एज अ प्रीफिक्स बिफोर द कॉलम एंड रो नेम्स इन द फॉर्मूलाज लाइक दिस. तो जो कॉलम और रो नेम होता है हम फॉर्मूला में उसके आगे डॉलर का साइन लगाते हैं. For example, in the formula in C3 is this. After copying it using the fill handle, तो formula automatically appear होगा in the as same in cell C4, in cell C5 and in cell C6 and so on. यहाँ पे values change नहीं होती after moving to another location. Mixed cell referencing क्या है? Mixed cell referencing is either an absolute row and relative column or an absolute column and relative row. इसका मतलब है यहाँ पे वन पार्ट जो होता है सेल रेफरेंस का वो सेल एड्रेस का रिलेटिव होता है एंड अदर होता है एब्सोल्यूट. फॉर एग्जांपल मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग के अंदर C3 equals to B3 is relative referencing and this is mixed referencing. So when a cell containing formula related to mixed referencing is copied, तो रिलेटिव वैल्यू तो चेंज होती है बट जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो रिमेन सेम ही रहती है. नाउ प्रिंटिंग का वर्कशीट. तो आप अपनी वर्कशीट को या अपनी वर्कशीट के पार्ट को प्रिंट करा सकते हो, उसकी हार्ड कॉपी ले सकते हो अपने डेटा की बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टेप्स. तो आपको क्या करना है? अपने डेटा को सिलेक्ट करना है इन अ वर्कशीट जिसको आप प्रिंट कराना चाहते हो. देन क्लिक ऑन फाइल टैब, देन क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन एंड क्लिक ऑन प्रिंट बटन. There is also a shortcut key Ctrl plus P to print the worksheet. Let's revise the chapter. Mixed reference is either an absolute row and relative column or an absolute column and relative row. Formula is defined as a mathematical equation or expression or a physical law जो represent करता है relationship between various quantities. Formula in MS Excel starts with an equals to sign. Functions are predefined formulas जो perform करते हैं calculations. MS Excel के अंदर आप लिख सकते हो formula only once and then उसको drag कर सकते हो जिसको बोला जाता है autofill. Operations are the symbols that are used to perform calculations on the elements of a formula. Logical operators give single value as a result which is true or false. Relative reference occur होता है when a cell is entered in a formula without using the symbol, and cell reference is a cell address that is used in formulas to denote a specific cell. Now let's do exercise of the chapter. First is tick the correct option. Which one of the following is cell address character? This. Now relative cell references are used to indicate both A and B. Which of the following is an arithmetic operator? Yes. Which of the following is a logical operator? This. Now next is fill in the blanks.
In Excel, cell reference identifies the dash of the cell position. A dash character is used to combine text values to another text. Ampersand. Formula in MS Excel begins with a equal sign. Dash are symbols that are used to perform calculations on the elements of a formula. Operators. The address of a cell used in calculating formula is called cell reference. Next is true false. Formulas in Excel are written as in mathematics. False. Formulas are entries that have an equation which calculates a variety to display. True. Cell reference refers to a cell or a range of cell in on the insert tab. False. Logical operators are used to compare two values. True. Reference operators are used to combine a range of cells. False. So students, this was a complete chapter about more features in MS Excel. The chapter is clear to you. Do revise it once again and also learn and practice your exercises. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.